Hello and welcome back, friends. Today we'll be dealing with section 120A and section 120B of IPC, which deals with the law relating to conspiracies. So the criminal jurisprudence says that you can make any person liable for that offense only when the offense has been completed. That is, only when the actus reus is present there. एक्टस रियस मीन्स जो फाइनल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है उसे हम एक्टस रियस बोलते हैं. तो जब एक्टस रियस इज कंप्लीटेड देन ओनली यू कैन मेक द पर्सन लायबल. बट व्हाट अबाउट दोज ऑफेंसेस और व्हाट इन दोज केसेस वेयर द ऑफेंस इज नॉट कंप्लीटेड. कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन कॉन्स्पिरेसी तो हुई थी ना. कॉन्स्पिरेसी हुई थी वो चीज़ करने की. मान लो करने से पहले ही द पुलिस हैव एप्रीहेंडेड देम, या फिर उन्होंने अपने प्लान पे गिव अप कर दिया. सो स्टिल यू कैन मेक द पर्सन लायबल. लेट्स सी कि हम कैसे इनकी लायबिलिटी के साथ डील करते हैं अंडर द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसीज. सो बिफोर मूविंग विद द लॉ लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्पिरेसी. So when the IPC was made, तो आज जो आपको सेक्शन 120A और B दिख रहा है, these are amended sections. These were not present earlier. So when the IPC was made, conspiracy was there in IPC in the form of abetment. So it was in section 107. But ये बस conspiracy नहीं था. This was by way of abetment. एंड हेंस अगर आप किसी को दुष्प्रेरित कर रहे हो, अबेटमेंट कर रहे हो कॉन्स्पिरेसी करके, तो वहाँ पर द अबेटर्स विल ओनली बी लायबल फॉर कॉन्स्पिरेसी व्हेन द ओवर्ट एक्ट वाज कंप्लीटेड. मतलब जब उसके फर्दरेंस में जो फाइनल कॉन्सिक्वेंस है वो हो गई हो, तभी यू कैन मेक द पर्सन लायबल under section 107 for the conspiracy by way of abetment. So जहाँ पर act is not complete, जहाँ पर this final consequence is not caused, वहाँ पर section 107 के अंदर there was no liability. बाकी conspiracies किस में थे? So there were some form of implied conspiracies also. So the implied conspiracies means कि impliedly those persons are conspirators, and these were present in offenses 310 that is belonging to a gang of thugs, section 400 that is belonging to a gang of dacoits, or section 401 which was belonging to a gang of thieves. सो हम देख सकते हैं कि कहीं भी बस और बस कॉन्स्पिरेसी को पनिश नहीं किया गया था. ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी वॉज देयर इन आवर सिविल लॉज, बट इफ वी टॉक अबाउट द क्रिमिनल लॉज नो, तो आप देख सकते हैं इन्हीं सारे सेक्शंस में कॉन्स्पिरेसी वॉज देयर. सो अलग से पर से कोई कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं था. देन व्हाट हैपेंड? A very landmark judgment in the form of R versus Mulcahy came. A very game changer judgment. तो प्री मल्काही क्या था और पोस्ट मल्काही क्या चेंजेस आए कॉन्स्पिरेसी के लॉज में, लेट्स अंडरस्टैंड. मल्काही से पहले generally it was said that the intention to do something is not punishable, because पहली बात तो it was very difficult to adduce the intention, and secondly वो intention बन के ही रह गई हो तो it has not culminated into the offense. So earlier merely having an intention to commit some offense was not punishable. तो इसलिए one intention was not punishable. जैसे कि आपकी इंटेंशन है, if your intention is to kill somebody,
माई इंटेंशन इज ऑल्सो टू किल दैट वेरी पर्सन, बट ये दोनों हमारी अलग अलग इंटेंशन है एंड इट इज नॉट पनिशेबल. बट मलकाही सेड, अब देखो मलकाही क्या बोलता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मलकाही सेज दैट जब दो लोगों की इंटेंशन साथ में आ जाती है ना, तो जहां पर दो लोगों की इंटेंशन मिलती है, then it becomes common intention to do some illegal act. So when there is a meeting of minds of two person, आपने भी सोचा that you have to kill that person, मैंने भी ये सोचा. जब तक हम दोनों ने आपस में बातचीत नहीं की, we did not agree on that thing, तब तक ये punishable नहीं है. But the moment we agree, the moment we form a common intention, then it becomes punishable. So the meeting of mind itself is an act. Meeting of mind जो हमारा हुआ है, यही act हो गया है. तो मलकाही says that a mere agreement to commit an illegal act, so if a mere agreement is only there, then it will amount to offense of criminal conspiracy. तो जब ये आया ना, at that time Britishers were ruling India, so Britishers को एक बहुत अच्छा, you can say कि बहुत अच्छा लॉ मिल गया आर्म वर्सेस मलकाही के रूप में, and they incorporated it to create 121A of IPC in the year 1870. So 1870 में उन्होंने ऐड कर दिया. So what 121A is dealing with, it is dealing with conspiracy to wage war against India. So here, चूँकि मलकाही का जजमेंट आ चुका था, मलकाही सेड दैट वी डू नॉट नीड अ ओवर्ट एक्ट. दो लोगों का कॉमन इंटेंशन जो मिलता है ना, दैट अग्रीमेंट इटसेल्फ इज एन एक्ट एंड दैट कैन बी मेड पनिशेबल. तो 121A में भी यही बोला, बट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजिंग वॉर. सो इट वॉज सेड दैट अगर आपने बस अग्रीमेंट किया है ना टू वेज वॉर, द मियर अग्रीमेंट टू वेज वॉर इटसेल्फ इज पनिशेबल एंड नो फर्दर एक्ट विल बी रिक्वायर्ड. लेकिन आप देख सकते हो ये जो सेक्शन 121A था, ये भी सारे ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं कर रहा था. इट इज़ नॉट अप्लाइंग टू ईच एंड एवरी ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी. It is not making each and every offense की conspiracy को punishable. It is only dealing with waging war. Okay? Now let's move forward. अब देखो फिर क्या हुआ. फिर we can see that in 1905 the partition of Bengal happened. फिर स्वदेशी मूवमेंट होने लगा. So there were civil revolts, you know, बहुत सारी जगह there were civil revolts against the Britishers. There was feeling of discontentment against the Britishers. So people wanted to overthrow the Britishers. अब ये जो सत्याग्रह होते हैं, obviously there are civil wrongs. Civil wrongs है ये. तो अब इन सिविल रॉन्ग्स को करने की कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो इज इट पनिशेबल? अभी तक हमने देखा देयर वाज ओनली सेक्शन 121A विच इज मेकिंग वेजिंग ऑफ वॉर की कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल. तो बाकी सारे ऑफेंसेस, रेस्ट ऑफेंसेस अपार्ट फ्रॉम 121A, और इफ देयर वाज सिविल रॉन्ग, और इफ देयर वाज समथिंग विच वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इन तीनों चीज़ों की कॉन्स्पिरेसी को कहीं पनिश नहीं किया जा रहा था.
And hence in 1913, in the year 1913, the Britishers added another chapter in IPC, which was chapter 5A. So this chapter added 2 new sections, that is 120A and 120B. ओके, तो यहां तक आपको हिस्ट्री तो समझ में आ गई होगी कॉन्स्पिरेसी की. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 120A. सो कॉन्स्पिरेसी के लिए वील रिक्वायर एटलीस्ट 2 or more than 2 persons, because a single person can never conspire with himself. तो कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है. अब देखो, कई बार ये चीज़ बोली गई ना, many times the question was asked that what if 2 persons are on trial, या फिर बी के अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हो पाता बिकॉज ही डाइड. या फिर ये देख लेते हैं कि बी पकड़ा ही नहीं गया, ही इज नॉट कॉट. या फिर ये तो पता है कि सम पर्सन वॉज इन्वॉल्व, बट ये नहीं पता कि वो कौन था. दैट इज नेम्स नॉट नोन. या फिर बी को अप्रूवर बना दिया गया है, ही हैज़ बीन पार्डन्ड अंडर 360 CRPC. तो देखो क्या होता है ना कि जब भी इफ 2 persons, यहाँ पे लिखा है कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए, बट हियर यू कैन सी द सेकेंड पर्सन, दैट इज बी. It cannot be brought on trial because of certain technical reasons, because he has either died, या फिर वो पकड़ा नहीं गया, his name is not known, or he has been pardoned. But definitely one thing जो हमें पता है is that he is involved in the crime. तो ये तो पता है ना that there are 2 persons. तो अगर B नहीं भी आ पाता है, फिर भी we can make A liable for the offense of conspiracy. And this thing has been well stated in the case of Bhim Bahadur Pradhan versus State of Orissa, another landmark case which is dealing with this point. It is saying that it is not essential that more than 1 person should be convicted. ज़रूरी नहीं है कि 2 का conviction हो offense of conspiracy के लिए. It is enough if the court is in a position to find that 2 or more persons were actually concerned. अगर कोर्ट को बस पता चल जाता है that 2 या 2 से ज़्यादा लोग थे, offense of conspiracy complete हो जाती है, and it becomes immaterial that whether the other person has been acquitted, died, cannot be brought on record, भाग गया वो, कुछ भी हो, but this person alone can be made liable. Okay? So ये भीम बहादुर प्रधान का case is very important. Now let's understand and move further, and we'll read. If a single person is in trial, but it is proved that he has formed an agreement to commit the illegal act. So the agreement is proved. The agreement is the sine qua non of this section. If you don't prove the agreement, you cannot prove the offense of conspiracy. So अगर सिंगल पर्सन भी है लेकिन आप अग्रीमेंट प्रूफ कर देते हो, ओके, then even if some other person are not on trial because either they are absconding or they are dead or cannot be brought on trial from technical reasons. For example, he is a person of government, a notice चाहिए, a notice has not been given, or he has become an approver after being given pardon, or he is a person of unsound mind or a minor. Still, this single person can be made liable for the offense of conspiracy. Now let's move forward और दूसरी चीज़ देखते हैं. अब देखो, when I tell you that
for the offense of conspiracy, meeting of minds is important. Common intention चाहिए, meeting of minds चाहिए. तो अगर दो लोगों की माइंड मीट कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट. So here the word agreement has not been defined in the IPC. अब देखो, agreement is also used in civil law. If you have read contracts, Indian Contract Act, then definitely we have seen the meaning of agreement there, which is in the form of consensus ad idem, where two parties consent upon the same thing in the same sense. But civil law की agreement की definition will not apply here. Why? Because civil law में हम ये agree नहीं करते हैं कि okay, we'll do some unlawful activities. Okay? But criminal law यहाँ पे जो conspiracy हम देख रहे हैं ना, conspiracy is always to do some illegal act or a legal act by illegal means. है ना? So civil law की जो definition है consent की, we cannot import here. So here, what do we mean by agreement? तो आप ऐसे समझ लो, agreement here means meeting of minds, common intention, where two persons agree for complementary action, for togetherness in action. Okay? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपकी भी इंटेंशन है ए को मारने की, मेरी भी इंटेंशन है ए को मारने की, बट सिंस वी हैव नॉट शेयर्ड इट, देयर इज नो कॉमन इंटेंशन, देन वी आर नॉट लायबल. लेकिन जैसे ही हम अग्री कर जाते हैं, हम कॉमन इंटेंशन शेयर करते हैं, ओके, देन वी बिकम लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. एंड अग्रीमेंट हैज़ टू बी डिस्टिंक्टली प्रूव्ड. आप ये बात हमेशा याद रखना कि अग्रीमेंट क्या है यहाँ पे, ये मेन एसेंस है इस सेक्शन की. इट इज़ द साइन को नॉन, सो इट हैज़ टू बी प्रूव्ड डिस्टिंक्टली. तो प्रोसिक्यूशन को इसको अच्छी तरीके से डिस्टिंक्टली प्रूव करना पड़ेगा. कोर्ट कैन मेक नो प्रिजम्पशन. अग्रीमेंट प्रिज्यूम नहीं की जा सकती है वाया द कोर्ट्स. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. Now let's see that the agreement which is there, the third essential element ये है कि agreement जो होना चाहिए, it should be to do an illegal act. अब देखो, illegal word कहाँ defined है IPC में? So it is defined in section 43. तो अब देखो, इलीगल वर्ड हमने यूज किया है, ना कि अग्रीमेंट टू डू एन ऑफेंस, बिकॉज इलीगल इज अ मच ब्रॉडर वर्ड. कैसे? तो इलीगल में ऑफेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सिविल रॉन्ग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. है ना? तो अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जैसे आप और मैं मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि प्लीज चलो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी के साथ, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना इज नॉट एन ऑफेंस, इट इज अ सिविल रॉन्ग. तो ये सिविल रॉन्ग है, इसकी कॉन्स्पिरेसी के लिए भी अंडर सेक्शन 120A आप लायबल हो सकते हो. लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो हम देखेंगे. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, द वर्ड इलीगल इंक्लूड्स नॉट ओनली ऑफेंस बट ऑल्सो सिविल रॉन्ग एंड एक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ. तो ये तीनों ही चीज इंक्लूडेड होता है. एंड फॉर द ऑफेंस, ऑफेंस पर से पनिशेबल होती है. पर से इट इज पनिशेबल. व्हाट डू यू मीन बाय पर से पनिशेबल? आपने और मैंने मिलके कॉन्स्पिरेसी की,
दैट लेट्स किल कसाब टुडे। तो हमने कॉन्स्पिरेसी क्या की? किसी को मारने की, विच इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 300 मर्डर। तो कॉन्स्पिरेसी की हमने, कल को हमने नहीं मारा या फिर हम मारने गए एंड वी आर कॉट, स्टिल फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी हम दोनों पे लाइबिलिटी लग जाएगी अंडर सेक्शन 120A। लेकिन हमने सिविल रॉन्ग की कॉन्स्पिरेसी की है। हमने कॉन्स्पिरेसी की लेट्स ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कॉन्स्पिरेसी अगर सिविल रॉन्ग करने की है या फिर कुछ ऐसे एक्ट करने की है विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो यहाँ पे हम पर से कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होंगे। यहाँ पे हम तभी लायबल होंगे व्हेन एनी एक्ट और ओमिशन इज डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पे अगर ओवर्ट एक्ट होता है तो ही हम लायबल होंगे, अदरवाइज वी आर नॉट लायबल। तो अब देख रहे हो हाउ ब्यूटिफुल इट हैज़ बीन ड्राफ्टेड। अगर ऑफेंस है तो डायरेक्टली यू आर लायबल, अगर सिविल रॉन्ग एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो यू आर नॉट लायबल अनटिल एंड अनलेस कॉन्स्पिरेसी के पर्सुएंस में एन ओवर्ट एक्ट हैज ऑल्सो बीन डन। ओके, अब यहीं से ना हम एक दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं दैट हमने अभी देखा सेक्शन 107 क्लॉज 2 विच वॉज डीलिंग विद अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी। ओके, अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी। सो यहाँ पे एक बात है कि अगर अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी थी ही, सो वाई वी मेड अ सेपरेट लॉ अंडर सेक्शन 120 एंड 120B? 2 points which you need to remember here. पहला पॉइंट क्या है कि सेक्शन 107 में बस आपकी लाइबिलिटी होती थी व्हेन यू हैव अबेटेड somebody टू डू एन ऑफेंस। तो आपने अगर ऑफेंस करने के लिए अबेट किया है तभी आपकी लाइबिलिटी होती थी। बट 120A and B में इफ़ यू हैव डन द कॉन्स्पिरेसी टू डू एन ऑफेंस और समथिंग विच इज़ अ सिविल रॉन्ग और समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इन तीनों के लिए यू आर लायबल। देख रहे हो 120A and B आर वेरी ब्रॉड। दूसरी चीज होती थी सेक्शन 107 में, जिस ऑफेंस को करने के लिए आप अबेट कर रहे हो वो ऑफेंस फाइनली हो जाना चाहिए, फाइनल कॉन्सिक्वेंस शुड बी कॉज्ड एंड देन ओनली यू कैन बी मेड लायबल अंडर सेक्शन 107 फॉर अबेटमेंट बाय डूइंग अ कॉन्स्पिरेसी। लेकिन सेक्शन 120A and B की बात करें तो यहाँ पे ऑफेंस के लिए you are per se liable, no overt act is required and neither the final consequence should have been caused। ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ की हमने कॉन्स्पिरेसी की, हमने कसाब को मारने की कॉन्स्पिरेसी की, तो थोड़ा भी ज़रूरी नहीं कि हम वेपन्स प्रोक्योर करें, और ना ये ज़रूरी है कि कसाब की डेथ हो जाए। बट वही अबेटमेंट में कसाब की डेथ होनी चाहिए, देन ओनली अबेटमेंट के लिए द पर्सन वॉज लायबल। तो आप देख रहे हो 107 में देयर वर सम प्रॉब्लम्स, कुछ एरियाज थे विच इट वॉज नॉट कवरिंग एंड हेंस सेक्शन 120A and B वर मेड। सो I have stated here section 107 clause 2 read with section 108 deals only with agreement to commit an offence and it does not deal with an agreement to do a civil wrong or an act prohibited by law। जबकि ये तीनों ही चीज़ें 120A में कवर्ड है। सेकेंडली 107 में for an agreement to commit an offence some act or illegal omissions was required, लेकिन 120A में is it required? No। आइए आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट।
जब आप सेक्शन 120A पढ़ोगे तो उसमें लिखा है एन अग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट और अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, ये भी कॉन्स्पिरेसी होगा। भले ही वो लीगल एक्ट है लेकिन आपकी मीन्स गलत है। सो इफ यू आर यूजिंग अ रॉन्ग मीन्स, तो भले ही आपका एंड जो है वो लीगल है, स्टिल यू विल बी मेड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब लेट्स अंडरस्टैंड, यू नो, सो टेक द एग्जाम्पल, ये मेरा घर है, आई हैव गिवन इट ऑन रेंट। अब मैंने ये जो रेंट पे दे रखा है अपना घर, दैट वॉज ओनली फॉर अ ईयर, 12 मंथ्स के लिए था। एंड नाउ द टेनेंट, ये जो है ना, ही इज नॉट हैंडिंग मी बैक माई प्रॉपर्टी। ना ही मुझे रेंट दे रहा है, ना ही मुझे प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर रहा है। सो व्हाट आई डू, आई मूव टू द कोर्ट एंड आई फाइल फॉर एविक्शन। मैं इसको एविक्ट कराने के लिए आई एम फाइलिंग अ सूट। अब देखो, अभी एविक्ट कराने का, मान लो सूट चला, आपको तो पता ही है जनरली इट टेक्स अच्छा खासा टाइम लग जाता है किसी को भी सूट की डिसीजन आने में। एंड अल्टीमेटली आई गॉट अ डिक्री इन माई फेवर। मैं इस डिक्री को दिखाते हुए आई टोल्ड हिम दैट प्लीज़ नाउ यू मे लीव एंड सी द डिक्री, गिव मी बैक माई प्रॉपर्टी। बट ही इज सेइंग दैट आई विल नॉट मूव आउट। डिक्री आ गई तो क्या हुआ? तो देखो, टेक्निकली व्हाट शुड आई हैव डन, मेरे को डिक्री की एग्जीक्यूशन करानी चाहिए थी अंडर ऑर्डर 21 ऑफ CPC। ऑर्डर 21 में मेरे को कोर्ट के पास जाके लीगल रिकोर्स तो यही था ना कि इफ़ इज़ नॉट मूविंग आउट इवन दो डिक्री हैज़ बीन ग्रांटेड इन माई फेवर, देन आई शुड हैव गॉन फॉर executing that decree under order 21. But instead of that, what I do, I call some gundas, I call some local gundas and I tell them कि इसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? I am doing a legal act because I have to get back my property. But जो मैं गुंडाज एम्प्लॉय कर रही हूँ, it is an illegal means to achieve a legal end. ये गलत मीन्स है। तो यहाँ पर भी जिन गुंडेज के साथ आई एम डूइंग अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ एविक्टिंग दिस पर्सन, ऑफ थ्रोइंग आउट दिस पर्सन, तो ऑल ऑफ अस विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120A। नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रोवाइजो। आई होप आपके सामने बैरैक्स ओपन होंगे। So I'll just read out the proviso. The proviso says, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy. Okay. So what it is saying, focus करो आप इन words पे, except and agreement to commit an offense। मतलब agreement टू कमिट ऑफेंस को छोड़कर बाकी दोनों चीज़ों के लिए, तो बाकी दोनों चीज़ें क्या बचती हैं? बाकी दोनों चीज़ें इज अ सिविल रॉन्ग और समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यही 3 चीज़ आती है ना इन द वर्ड इलीगल। तो प्रोवाइजो में बोला गया कि ऑफेंस को लीव आउट करो। तो ऑफेंस को लीव आउट करने के बाद वी आर ओनली लेफ्ट विथ सिविल रॉन्ग एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो प्रोवाइजो सेज दैट इन दोनों ही केसेस में आप पनिश किए जाओगे व्हेन देयर इज एन ओवर्ट एक्ट डन। ओके, तो प्रोवाइजो यही बोल रही है, मतलब ऑफेंस में यू आर पर से लायबल, बट व्हेन देयर इज अ सिविल रॉन्ग और देयर इज एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, then some overt act will be required. Apart from mere conspiracy, some overt act will be required to make you liable for the offense of conspiracy. And since this is a proviso, the proviso has to be given a strict interpretation.
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी. देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे. इन ऑर्डर टू गेट इनटू द प्रोवाइजो द मैटर हैज टू फर्स्ट फॉल इन द मेन सेक्शन. तो मेन सेक्शन के तहत वट एवर एक्ट यू आर डूइंग वो पहले कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए. इफ द अग्रीमेंट टू कमिट अ सिविल रॉन्ग और अ एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैज नॉट फॉलन इन द मेन सेक्शन, तो मेन सेक्शन के अकॉर्डिंग वो कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं, तो प्रोवाइजो भी अप्लाई नहीं करेगा. And the proviso has to be given a strict interpretation. तो प्रोवाइजो जब बोल रहा है कि एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, मतलब ऑफेंस को भूल जाओ, बाकी दोनों चीज़ों में ही आपकी लाइबिलिटी तब बनेगी जब कोई ओवर्ट एक्ट होगी. ओके. नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन विच इज why criminal conspiracy is an inchoate offense and made punishable. Firstly, let me tell you what is an inchoate offense. An inchoate offense is any offense which is generally a one-legged crime. For example, if I can say conspiracy to do what? Like if you tell about murder, theft, so these offenses are complete in themselves. But when you talk about conspiracy, so there'll always be conspiracy related to something. That is conspiracy to do murder, conspiracy to do theft. Similarly, if you talk about abetment, it will be related to some offense. Attempt, it will be related to some offense. So these all are like conspiracy is there, abetment is there. So these all are inchoate crimes. So why we are making an inchoate crime punishable is the question here. The question has been dealt by the Supreme Court in Esher Singh versus State of Andhra Pradesh, in which the Honorable Supreme Court has held that it was the policy behind creating the offence of criminal conspiracy. The policy behind creating the offence of criminal conspiracy is to prevent the immoderate power that a person may gain by the combination of many people. So basically our Honorable Supreme Court held that एक single person रहेगा ना, so maybe he will have a fear in mind not to do that crime. But when too many persons combine together and they all have a common intention to do a particular thing, then they gain immoderate power to do that thing. So इसीलिए हम उसको उसी स्टेज पे पनिशेबल कर देते हैं. ओके, एंड वी आर मेकिंग इट एन ऑफेंस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अग्रीमेंट वर्ड भी हमने देख लिया था. सो अब आइए पढ़ लेते हैं. द वर्ड अग्री सजेस्ट द पार्टीज हैव कंसेंटेड विथ ईच अदर टू डू व्हाट? टू डू एन इलीगल एक्ट. कंसेंटेड का मतलब है दे हैव अग्रीड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस और टुगेदरनेस इन एक्शन. एज आई हैव टोल्ड यू, agreement is the sine qua non or it is the gist of the offense of criminal conspiracy. The burden upon the prosecution in case of criminal conspiracy is to prove distinctly the agreement. है ना? Presume नहीं किया जाएगा agreement को. Agreement has to be distinctly proved. We have all dealt this. आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना. Now let's move forward and deal with very important question here. So the question is mere knowledge of conspiracy enough? क्या बस आपको पता है that some people are conspiring to do an offense, तो क्या आपको भी रोप इन कर लिया जाएगा? आपको भी लाइबल किया जाएगा कि आपको पता था and you have not done anything, so you are also liable? Can this thing be done? So the answer is that a mere knowledge of conspiracy will not be enough unless and until you are having a meeting of minds or there is a fusion of ideas. You cannot be made liable for the offense of conspiracy. अब इसको समझ लेते हैं पार्लियामेंट अटैक केस के एग्जाम्पल से. So in this thing what happened, जब पार्लियामेंट अटैक कम हो गया था, ओके, ऑफेंस कंप्लीटेड, उसके बाद जो इसमें लोग इन्वॉल्व थे ना, दे डायल्ड वन पर्सन. तो मान लो इसका नाम रख देते हैं हक्कानी. ओके, तो इस पर्सन के पास कॉल गया
एंड ही लाफ्ड एंड ही सेड, ओ ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया तुम लोगों ने, क्या कर दिया ये, एंड ही इज लाफिंग. सो ही इज having a knowledge of conspiracy, but mere having a knowledge of conspiracy will not make him liable unless and until there is either direct or there are circumstantial evidence to prove that he had common intention, to prove that he had complementarity in action to do that bomb blast, to do the parliament attack, है ना. तो बस आप, अगर आपको ऑफेंस है कि कहीं कॉन्स्पिरेसी होने वाली है तो वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, एंड यू कैन नॉट बी रोप्ड इन अनलेस एंड अनटिल यू आर शेयरिंग दैट इंटेंशन टू डू दैट थिंग. लेकिन देखो ऑब्वियसली दिस पर्सन, इसने कोई तो ऑफेंस किया है ना, ही इज़ हेल्पिंग देम, वो उसको बाद में मदद भी करता है टू एस्केप इनटू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आई गेस. तो ये हार्बरिंग के लिए लायबल होगा. ही विल बी लायबल फॉर सेपरेट ऑफेंसेस, दैट इज द ऑफेंस ऑफ हार्बरिंग, बट कॉन्स्पिरेसी के लिए वी कैन नॉट मेक हिम लायबल, है ना. अब देखो हम इसी को समझ लेते हैं ना, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, ओके, which is definitely given in, you can open up the illustration appended to section 10 of Indian Evidence Act. Okay, so now let's understand the, अगर parliament attack करना, this was the object of the conspiracy. So common intention was that the person has to do parliament attack. अब one person here, he is sitting in supposingly ये समझ लो कि ये ना पाकिस्तान में बैठा है और ये चाहता है पार्लियामेंट अटैक करना इन न्यू दिल्ली. सो व्हाट ही डज इज ही एम्प्लॉयज अनदर पर्सन बी. तो ये बी को एम्प्लॉय कर रहा है. सो ही इज टेलिंग बी दैट गो एंड डू, एक बॉम्ब ब्लास्ट करके आओ, या फिर आप अटैक पार्लियामेंट को अटैक करके आओ थ्रू बॉम्ब, ठीक है. अभी इसको पैसे दे देता है. अब ये ए और बी जो हमने पढ़ा ना, ये दोनों पाकिस्तानी है सपोजिंगली. अब ये सी है ना, बी सी को हायर करता है, विच इज़ हु इज़ इन मुंबई, या फिर मुंबई में ये है, और इसको हायर करता है कि कुछ पर्सन्स ढूंढो न्यू दिल्ली में हु कैन डू द अटैक, और RDX वगैरह लाना है. सो RDX वगैरह को अंदर लाने के लिए डू सम जुगाड़. सो व्हाट हैपेंस इज दिस C meets D. अब वो D ना, ही इज़ अ कस्टम ऑफिसर है ये. अब ये D को ये बोलता है दैट प्लीज़ आप ना RDX को अंदर आने देना. D को बोलता है. अब एक ये D अपने दूसरे कस्टम ऑफिसर ई से बात करता है कि RDX अंदर लाने देना है. बट नो व्हाट हैपेंस इज लाइक ई रिफ्रेन्स. सो ई इज नॉट अग्रीइंग विद द प्लान एंड सो सी शूट्स हिम. सी ई को मार देता है. ई डाइज. फिर अब ये सी दूसरे बंदे को हायर कर रहा है विच इज़ एफ, एंड एफ को इसने बोला है दैट गो एंड डू रेकी, पूरे पार्लियामेंट की तुम ऐसे रेकी करो कि हमें कहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह डालने हैं, सब कुछ है ना, कितने CCTV कैमराज है, एवरीथिंग. एंड फाइनली सी एम्प्लॉयज जी कि यू बोथ हैव टू गो एंड प्लेस द बॉम्ब देयर. अब इस जी और एफ प्लेस करके आ जाते बॉम्ब, पार्लियामेंट अटैक कंप्लीट हो जाता है, मान लो, है ना. सपोज कि पार्लियामेंट अटैक कंप्लीट हो जाता है. अब इसके बाद ये जो C है, G है और F है, ये दोनों एक पर्सन को कॉल करते हैं विच इज़ H, एंड दे टेल H कि देखो हमने ऐसे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, नाउ वी नीड टू एस्केप फ्रॉम इंडिया, सो काइंडली गेट एवरीथिंग अरेंज्ड. और ये H इनको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एस्केप करा देता है. ओके, सो अब यहाँ पे होगा कि
किस किस को हम लाइबल कर सकते हैं? देखो अब यहाँ पे ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल कॉन्स्पिरेसी एंड पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी। जनरल कॉन्स्पिरेसी क्या है कि पार्लियामेंट अटैक करना है, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी ए और बी के बीच में भी तो है, एक कॉन्स्पिरेसी बी और सी के बीच में भी तो है। वैसे ही सी और एफ के बीच में भी कॉन्स्पिरेसी है, सी और डी के बीच में भी कॉन्स्पिरेसी है, सी और जी के बीच में भी कॉन्स्पिरेसी है। सो दीज स्मॉल स्मॉल कॉन्स्पिरेसीज, नो, दीज आर कॉल्ड पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसीज एंड दे आर अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। और वो बिगर प्लान जिसको कि हम बोलेंगे जनरल कॉन्स्पिरेसी, विच इज डूइंग द पार्लियामेंट अटैक, डूइंग द बॉम्ब ब्लास्ट। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है दैट एवरी पर्सन शुड बी नोइंग एवरी पर्सन। ज़रूरी नहीं कि जो कस्टम ऑफिसर है उसको सी के अलावा किसी के बारे में पता हो। ही माइट नॉट बी अवेयर ऑफ बी और ए और एफ और जी। वैसे ही ज़रूरी नहीं कि एफ और जी को डी के बारे में पता हो, ए के बारे में पता हो, बी के बारे में पता हो। सो ऑल ऑफ द पर्सन्स दे आर नॉट नोइंग ईच अदर, बट उनको जनरली ये पता है ना दैट जो हम चीज़ कर रहे हैं इट इज़ अल्टीमेटली फॉर डूइंग अ पार्लियामेंट अटैक। वहाँ पे हमें बॉम्ब फिट करने के लिए ये सब किया है। एंड हेंस ऑल ऑफ देम विल बी लाइबल एक्सेप्ट एच। एच क्यों नहीं लाइबल होगा? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देखेंगे हम कि जब तक कॉन्स्पिरेसी चल रही है उस दौरान जितने लोग उसके पार्ट हैं दे कैन बी मेड लाइबल। But when does H come into picture? H comes when the conspiracy is over. So H will be liable for separate offences of harboring, but he cannot be liable for the offence of doing a bomb blast, for the conspiracy of doing a parliament attack. उसके लिए he won't be liable. इसी को section 10 के illustration में लिखा गया है. Now let's read the illustration. Section 10 is saying the facts that B has procured arms in Europe for the conspiracy, C collected money in Calcutta for a like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay, E published writings advocating the object in Agra, and F transmitted from Delhi to G at Kabul the money. Okay, देख रहे हो ना, सारे लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं that every person is knowing each else. Okay, so here although all the persons may have been ignorant of the others, still they will be liable for the offense of conspiracy. Okay, clear है ये? अब ये जो बातें मैंने आपको बोली ना, this is obviously been given कि आप conspiracy कैसे prove करोगे, what is the role of each and every conspirator. So let's understand. section 10 को देखते हैं। सेक्शन 10 पे जाने से पहले आई मस्ट टेल यू दैट कॉन्स्पिरेसीज आर जनरली डन इन सीक्रेसी, है ना? थोड़ी ना कोई बता के कॉन्स्पिरेसी करते हैं ओके नाउ वी आर गोइंग टू डू अ बॉम्ब ब्लास्ट। सो कॉन्स्पिरेसीज आर ऑलवेज हैश्ड इन सीक्रेसी एंड सो देर इज डिफ़िकल्टी इन प्रूविंग द कॉन्स्पिरेसी। तो डायरेक्ट एविडेंसेस जनरली तो कॉन्स्पिरेसी के अवेलेबल नहीं होते हैं। सो जनरली व्हाट वी डू नो, we prove conspiracy by way of circumstances. तो circumstantial evidences यहाँ पे हम use करते हैं because generally direct evidences are not available. And when we prove those circumstances, so the court raises an inference from those circumstances that whether the accused are liable for the offense of conspiracy or they are not liable. तो इसके लिए सेक्शन 10 बहुत बेनिफिशियल है। सेक्शन 10 इज़ वेरी ब्रॉड। और सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? सेक्शन 10 पहले देख लेते हैं। सो सेक्शन 10 सेज वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 or more persons have conspired together to commit an offense. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय एनी ऑफ सच पर्सन्स। तो किसी भी व्यक्ति ने कुछ कहा है, लिखा है या किया है बाय एनी ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। 10 लोग थे कॉन्स्पिरेसी में, किसी एक ने भी कहा है, ओके,
और जो बातें कही होनी चाहिए वो बातें इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन कही होनी चाहिए। और कब? आफ्टर द टाइम जब कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो गई थी। सो यहाँ पे ए ने सोचा पार्लियामेंट अटैक करते हैं, बट यहाँ पर ए और बी की कॉमन इंटेंशन हुई। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से, इस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर मान लो कॉन्स्पिरेसी में या सी ज्वाइन होता है, टी ज्वाइन होता है, ई ज्वाइन होता है, या फिर सी लीव कर देता है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ तक whatever was saying, said or done or written by A, B, C, D, E in reference to the common conspiracy will be a relevant fact. ये प्रूफ करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी, साथ ही साथ ये प्रूफ करने के लिए दैट द पर्सन्स वर अ पार्टी टू इट। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। सो आप ये मान के चलो ना, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट सारे कॉन्स्पिरेटर्स पार्टिसिपेट करने चाहिए फ्रॉम द इंसेप्शन टिल द एंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ज़रूरी नहीं है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है दैट यू हैव द कॉमन इंटेंशन टू डू इट। सो ऐसा हो सकता है दैट अ कॉन्स्पिरेटर मे टेक पार्ट, फिर थोड़ी देर बाद वो कॉन्स्पिरेसी लीव कर सकता है। भले ही उसने लीव किया है कॉन्स्पिरेसी, बट सिंस ही वॉज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अर्लियर, he will be held liable for the offense of conspiracy, because many times it happens that people quit after playing their role. All of them are equally liable. अब ये राजीव गांधी assassination case, which is famously known as State of Tamil Nadu versus Nalini, इसमें भी यही बोला गया था। इसमें here it is said that where in pursuance of the agreement the conspirators perform illegal act individually. चार लोग थे, चार लोगों ने सोचा कि बॉम्ब ब्लास्ट करना है, एंड ओनली दिस पर्सन गोज एंड डज द बॉम्ब ब्लास्ट. So since he is performing an illegal act individually also, no, and others are not actively participating, ये तीनों नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये still all of them will be roped in, still all of them will be liable, क्योंकि इमटेरियल है कि आपका रोल बड़ा है कॉन्स्पिरेसी में, छोटा है, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, देयर इज़ नो एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड, और यू आर मियरली पैसिवली कीपिंग अ वॉच, और यू आर मियरली सुपरवाइजिंग, फ़र्क नहीं पड़ता है. एवरी पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. Okay, now we'll see the punishment of conspiracy in a separate lecture. I hope you found the lecture easy, और आपको कोई queries है, do put it in the comment section. Thank you.